माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई पूछे कि ऑक्सीजन हमें क्यों लेना चाहिए, ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी शरीर में, हमारी लाइफ में, तो आपका जवाब क्या रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। यूँ तो ऐसे ही बता देते हैं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेना चाहिए वरना हम मर जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपको पूछे कि ऑक्सीजन हमें बेसिकली क्यों चाहिए, क्यों हम मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन से, तो इसका जवाब शायद आपके पास है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कंटिन्यू विथ मी। ऑक्सीजन इज़ ए मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल्स की मदद से हमारी शरीर क्या करता है। अक्सर लोग बताते हैं हमारे शरीर में जो फूड बाहर से लिया जाता है, इसकी प्रॉपर ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन in technical sense it is not that correct. We can disintegrate, we can digest food inside our cells without taking help from oxygen. That is true, but up to some extent we can disintegrate our food to culminate energy, but to disintegrate or to digest food properly inside a cell, we need the help from oxygen. That is why we need oxygen. ऑक्सीजन की बिना आप फूड से एनर्जी कल्मिनेट कर सकते हो, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है। विदाउट ऑक्सीजन अगर आप एनर्जी कल्मिनेट कर रहे हो फूड से, तो इसका अमाउंट हमेशा लेस देन 7% होता है। यदि आपको पूरा दैट इज़ 100% एनर्जी कल्मिनेट करना है, तो फिर आपको ऑक्सीजन की मदद चाहिए होता है। तो अब हम बात करते हैं हाउ द प्रोसेस ऑकर्स। तो लेट्स स्टे विथ मी। तो स्टे विथ मी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। यूँ तो हमें बताया जाता है अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर से इन रिटर्न CO2 निकलता है। In technical sense, this is not correct. The correct answer is if we take oxygen in return, we produces or we liberate water. You have to understand the process. And if anyone is asking then from where you can liberate carbon dioxide, your answer should be from food. Generally, we used to liberate carbon dioxide because our food is organic substance, and organic substance always contain carbon. Without carbon source, we will not be able to produce carbon dioxide. Hence, we produces carbon dioxide because of our food, not because of this oxygen. Now, I am taking the help of specialized organelles which is found in almost all eukaryotic cell. The name of organelles is mitochondria. So let us draw the diagram of the mitochondria. Diagram of mitochondria. Mitochondria के अंदर mitochondrial inner content कुछ इस तरह होता है। तो inside a mitochondria, what we will have in our first look, we'll have the inner membrane inside a mitochondria. Some parts of inner membranes are inward folded. These parts are called cristae. In plural, these are called crista. Now, why the inner membrane is folded, we will be discussing about that very soon. Now, we'll be talking about some other internal components of a mitochondria. A mitochondria is basically a membrane-bound organelle. That's why it is having a membrane that is called outer membrane. It is also having another membrane inside the outer membrane that is called inner membrane. The total or the functioning of a mitochondria is 98%
depends upon inner membrane. Inner membrane used to play a major role, vital role in mitochondrial function, that is the production of ATP or production of heat with the help of the food. We might have studied about the functions of mitochondria. हमें पढ़ाया गया है about mitochondria कि mitochondria is the powerhouse of cell. तो mitochondria किन किन types, कैसे, how mitochondria is the powerhouse of cells. We have to understand the concept of power. Power means conversion of, rate of conversion of energy is called power. How mitochondria is powerhouse? Because it can convert food energy into chemical storage, that is called ATP, or it can convert it into heat. Whatever the amount of heat we used to produce in our body, it is only with the help of mitochondria. हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ही हम क्या करते हैं, हम हीट प्रोड्यूस करते हैं. हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से हम क्या करते हैं, एटीपी भी बनाते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से जो एटीपी बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन का क्या काम है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं. Whenever we used to take food used to digestion process occurs. After the process of digestion, food molecules absorb होता है. Absorb होने के बाद foods को cells के अंदर पहुंचा दिया जाता है. Inside a cell what happens, the process started is called intracellular digestion. सेल के अंदर की जो डाइजेशन प्रोसेस है, फूड ब्रेकिंग प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं सेलुलर डाइजेशन. इन सेलुलर डाइजेशन व्हाट हैपेंस, स्पेशली इन साइटोप्लाज्म, when the digestion process starts, if we are talking about glucose, we can take example of other molecules also, but glucose is comparatively easy to understand, और लगभग सबने पढ़ा हुआ है about glucose. तो जब क्या होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, तो ग्लूकोज से कुछ स्टेप्स के बाद क्या बनता है, पायरुवेट. क्या बनता है, पायरुवेट, और हम पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. अब पायरुवेट को कहाँ भेज दिया जाता है, पायरुवेट को सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज दिया जाता है. अब पायरुवेट के साथ क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसके बारे में हम बात करते हैं. पायरुवेट से किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, अनदर रिएक्शन स्टार्टेड, दैट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल. इसके बारे में हम सब ने पढ़ा हुआ है. सिट्रिक एसिड साइकिल की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो काम होता है वो बहुत ही अहम है. सबसे पहली बात तो ये है, इसकी मदद से जो बनता है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस बिकॉज ऑफ दिस सिट्रिक एसिड साइकिल. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज टू प्रोड्यूसेस टू मेजर मॉलिक्यूल्स, टू मेजर इलेक्ट्रॉन डोनर, जिनको हम जानते हैं इन नाम से NADH एंड FADH2. इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर. अब हम सीधा बात करते हैं इन इलेक्ट्रॉन डोनर्स का काम क्या है. When electron donors are produced because of citric acid cycle, तो क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का इस्तेमाल होता है. When acetyl coenzyme will be consumed, then pyruvate should be shuttled. तो जब पायरुवेट का इस्तेमाल होगा, obviously it will demand more glycolysis. The cell will demand more glycolysis. जब सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होएगा, तब क्या होगा, बाहर से ग्लूकोज की जो इम्पोर्ट है वो बढ़ाया जाएगा. तो सीधी सी बात है, NADH and FADH2 formation is directly or indirectly depends upon the import of glucose. और अदर सब्सटेंसेस भी हो सकता है. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज. ग्लूकोज के अलावा जिन जिन चीज़ों से
एसिटाइल कोएंजाइम ए बन सकता है सभी के मदद से। क्या बन रहा है? NADH एंड FADH2। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स आर सम मेम्ब्रेन एम्बेडेड प्रोटीन्स। तो इंटरनल जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं, जिनका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस सम अदर्स आर देयर, जैसे कि अनकपलिंग प्रोटीन्स हो सकता है, कपलिंग प्रोटीन्स भी हो सकता है। तो कपलिंग प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? F0 F1। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अबाउट F0 F1। अबाउट अनकपलर, जिनके मदद से क्या होता है? सीधा चार्ज्ड पार्टिकल एक साइड से दूसरे साइड में मूव कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो चेन है, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक? बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर ये मॉलिक्यूल्स है, तो इनके मदद से इस चेन को क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन। तो इस चेन से होते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाता है? ये इलेक्ट्रॉन जाता है जहाँ तक इसका नाम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बेसिकली हमारे सेल के अंदर जिस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ये काम है एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेप्टेंसी है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो सीधी सी बात ये है, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं मिलेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं मिला तो फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो फिर इस चेन में कोई वैकेंसी ही नहीं होगी। अगर कोई वैकेंसी नहीं होगी तो फिर ये डोनर कहाँ डोनेट करेंगे भाई? मतलब ये है, अगर ये डोनर बनने के बाद इस्तेमाल ही नहीं होता है तो फिर दोबारा ये बनेगा नहीं, क्योंकि जहाँ जो भी बन रहा है अकॉर्डिंग टू नीड, यहाँ कोई नीड ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो भाई क्यों बनेगा? रिजल्ट ऑफ दिस हम ये कह सकते हैं, इस साइकिल में भी दिक्कतें आ जाएंगे। रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा? फूड का जो इस्तेमाल है वो कम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है? तो अच्छी बात है अगर फूड के इस्तेमाल हमारे शरीर में कम हो रहा है। नहीं, यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अगर आपके शरीर को क्या चाहिए? ATP, दैट इज एनर्जी, और हीट, कोई भी अगर चाहिए तो फिर क्या चाहिए होगा? फूड चाहिए होगा। अगर फूड का यहाँ कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है भाई, तो फिर फूड भला क्यों आएगा बाहर से? मतलब सेल के अंदर फूड के एंट्री में दिक्कत हो जाएगी। तो बात सीधी सी ये है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम सही से नहीं हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर बाकी सारा का सारा चेन रुक जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का क्या रोल है हमें पता चल गया। अब होता क्या है यहाँ, जब ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, यूजुअली इट यूज्ड टू कन्वर्ट्स इनटू स्पेशल मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड पानी और H2O, वाटर। ये वाटर में तब्दील होता है और इस वाटर को बाहर निकल दिया जाता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसके इस्तेमाल के बाद जो ऑक्सीजन है वो जिसमें कन्वर्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है? वो पानी है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है तो ये आ कहाँ से रहे? तो ये कहाँ से आ रहा है? जहाँ कार्बन पहले से कहीं ना कहीं था। तो हमारे शरीर में बाहर से आया हुआ कार्बन एक ही सोर्स से आ सकता है, वो क्या है? फूड। क्या है? फूड। बिकॉज हम ज़्यादातर जो एनर्जी के लिए फूड लेते हैं वो ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक फूड भी हम लेते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मिनरल्स हम लेते हैं, पानी हम लेते हैं, ये तो ऑर्गेनिक नहीं है, फिर भी हमें लेना होता है क्योंकि इसकी ज़रूरत हमारे शरीर को है। पर एनर्जी के लिए, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए कुछ और काम है, जैसे कि हार्मोन्स बनाना, एंजाइम्स बनाना, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए ही चाहिए होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर द प्रोसेस।